اور شام کے شمالی علاقے کے لوگ ابھی بھی بنی عقیل کو لگان دیتے ہیں۔ لگان وصول کرنے والوں سے کہو کہ لگان سختی سے وصول کریں، کیونکہ بیت المال درہم و دینار کا شدید محتاج ہے۔ عالی جناب، ابھی ضرورت ہے عراقیوں کے دل جیتنے کی، خاص طور سے ان لوگوں کا رجحان بغداد، بصرہ اور کوفہ میں حکومت کے غاصبوں کی طرف سے ہے، لہٰذا ان کے ساتھ تھوڑا سا نرمی سے پیش آئیں۔ لگان دینے سے انکار حکومت سے بغاوت ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لگان میں سے کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں اور نہ معافی ہے، لہٰذا ان فضول باتوں کو بند کرو اور جو حکم دیا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے حکم کی اطاعت میرے آقا۔ میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں اور نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں کوئی کام میری اطلاع کے بغیر انجام پائے۔ عقل مند وہ ہے جو عبرت حاصل کرے۔ میرے محترم جناب، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ مجھے نہ وزیر بنائیں نہ کاتب، بلکہ ان دونوں کے درمیان کوئی عہدہ دے دیجئے مجھے۔ اسی لیے تو تم سے قبول کیا۔ ایک سوال ہے ابی خالد کے بیٹے، جو حکم میرے آقا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے وزیر بننے سے انکار کیوں کیا اور وزیر و کاتب کے درمیان کوئی عہدہ چاہتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مجھے جان کی امان ہے آقا؟ امان ہے۔ میرے آقا، میں نے آپ کے وزیروں کو دیکھا، ابا سلمی خلال، یعقوب ابن داؤد، یحییٰ بن خالد اور اس کے بیٹے، تو پھر کیا؟ بولو۔ پھر فضل بن سہل، میرے جناب عالی۔ کیا میں نے فضل ابن سہل کو قتل کیا؟ خدا کی پناہ، میں نے ایسا کب کہا؟ نہیں کہا، مگر اشارہ تو کیا ہے۔ مامون اپنے خاص لوگوں سے اشارہ قبول نہیں کرتا۔ اگر کہنا ہے تو صاف صاف کہو، ورنہ خدا مجھے آپ کے غضب سے پناہ میں رکھے۔ مطلب کہ وہی کیا۔ بات کو گھمانے کی کوشش مت کرو، اصل مطلب بیان کرو، کہو، کچھ نہیں چھپاؤ۔ عالی جناب، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ منصب کی لالچ وزیر کو ظلم تک پہنچا دیتی ہے، بالآخر وہاں پہنچتا ہے جہاں راہ نجات نہیں رہ جاتی، مگر اس کا سر یا خلیفہ کا سر۔ لیکن میں کسی سے ظلم قبول نہیں کرتا اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ خود حکومت کروں، فقط خود۔ ہاں، ہمارا مقصد یہی تھا عالی جناب، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سر قلم نہ ہو، بس یہی میرا مطلب صاف۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا سر قلم نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی عقل کا صحیح وقت استعمال کرے اور غفلت نہ کرے، ورنہ غفلت کے نتیجے میں اس کا سر قلم ہو جائے گا۔ سمجھ گئے تم؟ یہی تو کہا تھا میں نے بھی آقا۔ مجھے امید ہے کہ تم لمبی عمر ہماری خدمت کرو گے۔ خدا تمہارے سر کو محفوظ رکھے۔ تمہارا خلوص یاد ہے مجھے، اے میرے کاتب اور میرے وزیر۔ امیر طاہر بن حسین بن خزائی تشریف لا رہے ہیں۔ سلام ہو خلیفۃ المسلمین پر۔ سلام ہو طاہر بن حسین ذوالیمینین پر۔ دو ہاتھ ایک چشم، ہمارے نور چشم کی مصیبت میں ہمیں مبتلا کیا، اور اب ہمارے سامنے ایسے آیا ہے جیسے بے گناہ ہو۔ مناسب ہے تمہاری دوستی پر ہمیں فخر ہو کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتے رہے، چاہے جاہلیت ہو یا اسلام کا دور۔ عجمی عربی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ چچا جان، ہماری راہ میں اتنی فداکاریوں کے بعد ایسی بات نہ کریں۔ امیر المومنین سلامت رہیں، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو جو مجھے ذلیل کرتا سزا کا مستحق ہوتا۔ جانتا ہوں، تم بھی کہو طاہر، آنکھ کے مقابلے میں آنکھ اور دانت کے مقابلے میں دانت کا بدلہ لیا جائے گا، کہو۔ عرب کہتے ہیں پتھر کو اس کی جگہ پلٹا دو، لیکن تمہارا کہنا کہ ہم عجمی پست ہوتے ہیں صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سلمان رحمت اللہ علیہ بھی عجمی تھے،
और मुहिब्बे अहले बैत थे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान मेरे अहले बैत में से हैं। और रसूल खुदा के इस फरमान के बाद पस्ती का कोई सवाल ही नहीं होता। मेरी जान की कसम कि तुम्हारे दादा इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह जब अबू मुस्लिम खुरासानी को भेजा तो फरमाया, खुरासान तुम्हारे हवाले। यहाँ तक कि उन्होंने तलवार उठाई और जब तक तुर्क और अतलस के पहाड़ों पर जाकर कब्जा नहीं जमा लिया उसे नहीं छोड़ा। रसूल खुदा ना होते तो लोग किस पर इफ्तिखार करते? अगर लोग हमारे साथ इंसाफ ना करें तो क्या हुआ? इंसाफ किया है पैगंबर ने, खुद नबी ने फरमाया, अगर इल्म दीन आसमान पर हो तो फारस के लोग उसे हासिल कर लेंगे। बस मैं फारसी हूं और मेरी रगों में कबीला खुजाई का खून दौड़ रहा है और हमारी कौम ने तुमसे अहद किया और ज़माने जाहिलियत और इस्लाम में तुम्हारी मदद की, कभी तुमसे खयानत नहीं की, हाशिम से अहद किया और इस तरह वफा की जिसकी मिसाल अरब में नहीं है। जब तुम लोगों ने हुकूमत के लिए आपस में इख्तिलाफ किया, इब्ने महान अमीन के साथ था और मैं था साथ मामून के। मुल्कों को फतह किया और सख्तियों को आसान बनाया मैंने, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे बदला लिया और दूसरे की बैत करके इब्न सलामा के सिपाहियों में शामिल हो गए। मैं वो नहीं हूं जो किसी से डरूं या धोखा खाऊं। बस ध्यान रखना तुम किसके मुकाबले में आए हो। खुदा की कसम, अगर खलीफा का हुक्म हो तो किसी चीज से पीछे नहीं हटूंगा, ये साबित कर चुका हूं। मेरे कामों में दखल मत दो। उम्मीद है कि मेरा मतलब समझ गए होगे। कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारी जगह ले सकता है। तुम हर मैदान में आगे हो, मुमकिन नहीं मैं तुम जैसा दूसरा पाऊं। जाओ ताहिर, लेकिन जल्दी ना करना। कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताऊंगा सही वक्त आने पर। उस वक्त तक तुम मेरे हुक्म का इंतजार करो बस। सर आंखों पर। इस एक आंख वाले को खुद पर ज्यादा ही नाज है। खुदा की कसम चाचा, जब भी मैं भाई मोहम्मद को याद करता हूं तो मुतासिर हो जाता हूं, और इस बात का मेरा खुदा गवाह है। किसी सिपाही जंगजू को नहीं देखा जो अपनी शुजाअत पर मगरूर ना हो और दुश्मन के लिए सख्त दिल, साथ ही वफादार हो और डर खौफ ना रखता हो। बिल्कुल ताहिर की तरह। बोलने से पहले सोचिए। आप मेरे चचा हैं, एहतियात कीजिए। मामून मुतअद्दिद उमूर में मशगूल था, जैसे खानदानी मसाइल और दीनी व अकीदती इख्तिलाफात जो उसकी हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। इस तरह इमाम जव्वाद ने मौके को गनीमत समझा और उलमाए दीन की मदद से दीन की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया। मेरे मौला, मैं चाहता हूँ आप मुझे नसीहत फरमाइए। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो खुद को मशवरे से बेनियाज समझे वो खुद को खतरात से दोचार करता है, और जो अपने आप को बरतर समझता है बर्बाद हो जाता है। मैं इससे ज्यादा न्याजमंद हूँ, मुझे मजीद नसीहत फरमाइए मेरे मौला। जो यकीन रखता है कि दूसरों को अता करने का सिला मिलेगा, वो हरगिज़ अता करने में गफलत नहीं करेगा। हमारे जद अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर शख्स की कीमत उसके नेक अमाल की बराबरी है। खुशामदीद फुप्पी जान ज़ैनब बिन्ते सुलेमान, आफरीन बनी अब्बास की जलील कदर खातून पर। सलाम हो खलीफा मुस्लिमीन पर। कहाँ मैं और कहाँ जाफर की बेटी सुबैदा। मैंने उनसे कहा अगर वो मर्द होती तो तुम्हारे बराबर बनी अब्बास में कोई मर्द नहीं था। वो बनी अब्बास की खवातीन की सरदार हैं और आप एक अजीम तरीन खातून हैं। तशरीफ रखिए। नहीं, जब तक तुमसे नाराज हूं हरगिज़ नहीं बैठूंगी। किस बात पर मुझसे नाराज हैं? जो भी शख्स मुझसे नाराज है मैं उज़्र खाही के लिए उससे आमादा हूं। ये नाराजगी क्यों है? जो भी हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाती? काला लिबास जो बाप दादा की निशानी थी उसे छोड़कर सब्ज लिबास अपना लिया है तुमने, और इस अमल से मरहूमीन को रंजीदा और जिंदों को नाराज किया। हमारे और आपके चचा अबू तालिब के बच्चों का दर्द एक ही था।
اور تو اور उसमें हम कामयाब हुए हैं और हुकूमत हमारे हाथों में है। अब मैं चाहता हूं उनके साथ हमदर्दी करूं। ए खलीफा मुस्लिमीन, अगर मालो दौलत पर कुदरत है तो उनसे मालो दौलत के जरिए हमदर्दी करो। ये कौन सा तरीका है हमदर्दी करने का? जो मेरे दिल में था वो कह दिया आपसे। अब ये आपकी राय है या पूरे खानदान का यही नजरिया है? हाँ, हम सब खानदान वालों की यही राय है। जैसा आप सब चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। बस यही तो सुनना चाहती थी। आपकी तमाम ख्वाहिशों पर अमल होगा। ऐसे ही उम्मीद है तुमसे। तशरीफ भतीजे। रखिए। ए सईदा, आप जानती हैं कि मेरे प्यारे बाबा, अल्लाह की उन पर रहमत हो, उन्होंने हमें बताया था कि घर के अफराद और नौकरों के दरमियान कोई फ़र्क ना करें। अगर मेरे बाबा ने इस बात की सिफारिश ना की होती तो मैं ये ना कहता। क्या मेरी किसी बात से नाराज़ है मेरे आका? आपके आबा व अजदाद पर सलाम हो। सलाम हो आप पर। ऐसी कोई बात नहीं है सईदा, हम क्यों नाराज़ होंगे? फिर फरमाइए क्या हुआ मेरे मौला? आप इस कदर परेशान क्यों रहती हैं सईदा? इसकी वजह यह है कि मैं आप लोगों के लिए फिक्रमंद हूँ। मैं फ़क्र व तंगदस्ती से डरती हूँ मौला। मेरे बाबा ने ताकीद की थी कि घर के बड़े दरवाजे के अलावा घर के किसी और दरवाजे से ना निकलें, ताकि तमाम लोग हमें आसानी से देख सकें। खुसूसन मोहताज और ज़रूरतमंद लोग, वो लोग हमारे माल में हक रखते हैं, तो इस बात की नाफरमानी ना कीजिएगा। मेरे भतीजे, सईदा हालात के नासाजगार होने से डरती है, इसे माफ़ कर दें। जानता हूँ फूफी, इस पर कोई कैदो बंद नहीं है। इसकी सदाकत और मोहब्बत से आगाह हूँ, इसी तरह इसकी कम खर्ची से भी वाकिफ़ हूँ। ना रो सईदा, ना रो। कैसे न रोऊं जबकि मुझसे इतनी बड़ी चूक हो गई। लानत हो मुझ पर। आले मोहम्मद मुझसे इस तरह की सरजनिश करे और मैं ना रोऊं। दुनिया और आखिरत तो बर्बाद है मेरे लिए। नहीं सईदा, हमारा मतलब ये नहीं था। तुम अपने आप को इस घर की खादमा ना समझो, बल्कि इस घर की तालीमात से बुलंदी तक पहुँचो। तुम हमारी माँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खादमा जनाब फ़िज़ा की पैरवी करो, जो बुलंद मकाम तक पहुँची। ए फुप्पी, आप इनकी मदद करें। मेरे आका, मैं जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैह के बारे में जो कुछ जानती हूँ वो ही बताऊंगी। हज़रत फ़िज़ा हर नेक काम में हमारी मादरे ग्रामी हज़रत ज़हरा की मदद करती थी। वो हम अहले बैत से मोहब्बत रखती थी और उन्होंने अपनी तमाम तवानाई को दफ़ाए विलायत में सर्फ कर दिया। मैं भी आपके हुक्म की इताअत करूंगी मेरे मौला। खुदा हमें जो अता करे हम उस पर राज़ी हैं। अगर वो हमारे लिए काफ़ी हो, उसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। अगर खुदा वसी रिज़्क़ अता करे तो हम और हमारे घर वाले खुदा की रज़ा पर राज़ी हैं और तंग दस्ती में सब्र करते हैं। हमारे अजीज़ो जान लो कि ज़ालिमों के मुकाबले में मोमिन का तंग दस्ती और बला पर सब्र करना बेहतरीन इस्लाह है। आपकी सदाकत व इफ़्फ़त ने आपको ज़ीनत बख्शी है। फुप्पी, खुदा हर हाल में आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए मेरे मौला। खुदाया उनकी हिदायत फरमा। मेरे मौला, मेरे लिए सख्त है कि आपका हक हर कस और नाकस के हाथ पर देखूं। जान लो ए सईदा, मुसीबत पर सब्र करना खुद जालिमों के मुंह पर तमाचा है। सब्र करो, जो भी सब्र करेगा हमारी तरह है। खुदा ने मुसीबतों के ज़रिए हमारा इम्तिहान लिया। पहाड़ जिस पर सब्र की ताकत नहीं रखते थे, हमने ऐसी मुसीबतों पर भी सब्र किया। खुशामदीद, सलाम हो तुम पर ताहिर। पहले मुझे सलाम करना चाहिए था, मगर आपने सबकत ले ली। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं ताहिर। बैठो। जिस हुकूमत में तुम जैसा शख्स मौजूद हो, उसे क्या डर? कुछ अपने बारे में बताओ ताहिर, अपनी आरज़ुओं के बारे में बताओ मुझे। मैं ताहिर हुसैन का बेटा हूँ।
पोचिंग नामी जगह का रहने वाला हूँ। 46 साल के इंसान की क्या आरजू होगी जबकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे आका तख्त नशीन हैं और मैंने उनके दुश्मनों का खात्मा कर दिया और मगरूरों के सरों को अपनी तदबीर से झुका दिया, और हर बज़्म में आली जनाब मुझे बख्शते हैं, और जो लोग भी हमसे हसद करते हैं आपने उन्हें कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दिया। जो कहा मैं समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी शान के मुताबिक इनाम देना चाहता हूं। अगर बेहतर समझो तो हमारे तमाम लश्कर की सरदारी कबूल करो, मुझे खुशी होगी। अगर बुरा ना माने तो मुझे माफ करें। तुम इस मुलाकात से शायद खुश नहीं हो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी है तो तुम बोल सकते हो ताहिर बिन हुसैन। मैं आपके रिश्तेदारों से खुश नहीं। मुझे खबर मिली है कि अब्दुर्रहमान मुत्तोई ने नीशापुर में कुछ लोगों को जमा किया है ताकि हुरूरिया के खवारिज से बगैर इब्ने इबाद की इजाजत के जंग करें, और मुझे डर है कि अगर तुम्हारी तरह कवी और बाज़म शख्स के जरिए उसे रोका ना गया तो उस आग का शोला सबको लपेट में ले लेगा। खुदा की कसम, इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। मैं तुमको हल्वान से मशरिक तक के दूर दराज इलाके का हाकिम बना दूंगा। तो हसन बिन साहल का क्या होगा? वो मशरिक में मेरा वजीर है और तुम उसके अमीर हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम ये कबूल कर लोगे, क्योंकि उज़ुर भी कोई नहीं है तुम्हारे पास। दरअसल मैं फिक्रमंद हूं कि तुम जैसा इंसान खुरासान के फितने को ना रोके। ऐ जुल यमीनैन, ये दोनों हाथ आपकी खिदमत के लिए हैं। मुबारक हो ताहिर बिन हुसैन। मैं देख रहा हूं कि सब्ज रंग को स्याह रंग में तब्दील कर दिया है। खलीफातुल मुस्लिमीन, कोई खास वजह? बनी अब्बास अपने निशाने के अलावा कोई उज़ुर कबूल नहीं करते, अलबत्ता मुती हो गए हैं। इसी तरह बाहर जाओ ताकि सिपाही और सरदार लश्कर सब तुम्हें हमारी तरह देखें और जान लें कि लिबास का रंग मैंने तब्दील किया है। इताअत अली जनाब। खुरासान जाओ, लेकिन जो मुसीबत आए उसे खुद झेलना। ताहिर जुल यमीनैन। इब्ने अबी खालिद, मुझे खलीफा मुस्लिमीन मामून के कामों पर ताज्जुब है। आखिर तुम्हें किस चीज पर ताज्जुब है अली? मुझसे साफ साफ कहो। क्या हुआ कि उसने ताहिर को खुरासान भेज दिया और मुझे उसने लश्कर का सरदार बना दिया, जिस बात की तवक्को भी नहीं थी मुझे। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे लिए बेहतर तो है ये। मैं कैसे खुद को बेहतर साबित करूं? तुम्हारी मुश्किल क्या है लश्कर सरदार? तुम्हें नहीं लगता कि ताहिर खुरासान में खलीफा के लिए खतरा बनेगा? क्यों खतरा होगा ए अमीर लश्कर, जबकि इसने मुताद्दिद बार अपनी वफादारी का सबूत दिया है। उसकी वफादारी पर शक नहीं, लेकिन अगर नाफरमानी पर उतर आए तो फिर कौन उसका मुकाबला कर सकता है? वो जितना भी बहादुर और जंगजू क्यों ना हो, लेकिन अबू मुस्लिम खुरासानी की तरह बिल्कुल नहीं। गलत समझ रहे हो इब्ने हशाम। वो लोग अपने काम में माहिर हैं, उस कबीले की बराबरी नहीं कर सकता। याहिया बिन फजल से लेकर फजल बिन साहल तक, और हो सकता है कि उनके बाद ताहिर हो। लिहाजा बड़े लोग इतना ऊंचा नहीं उड़ते कि उनका कद खलीफा से बुलंद हो जाए, वरना खलीफा उनका सर जिस्म से। और खलीफा ताहिर के साथ क्या करेंगे? उसके साथ तो इतना बड़ा लश्कर है। इब्ने हशाम, ताहिर ने हमेशा से ही अपने खलीफा का एहतराम किया है, कभी भी उनके हुक्म की मुखालफत नहीं की है। वो हमेशा खलीफा का मुती ही रहा है और अभी भी उसका सरे तस्लीम खम रहता है। लगता है भूल गए हो कि फजल और उसके भाई हसन ने ताहिर को बगदाद से दूर कर दिया है और उसे कुदरत और माल तमाम चीज़ों से महरूम कर दिया है और रक्का में चंद सिपाहियों का सरदार बना दिया है।
یہاں تک کہ وہ نصر ابن شبس جیسے قبیلے نے قیام کے لیے ابھارا تھا، اس کا بھی مقابلہ نہ کر سکا وہ، سمجھے؟ شاید ایسا ہو، لیکن جو میں نے کہا وہ احتیاطی تدبیر کے لیے تھا۔ مامون نے منصور و ہادی کی طرح ایرانیوں کی مدد سے اپنی حکومت کو مستحکم بنایا، اور اس کے بعد اس نے ایرانیوں کو اپنی حکومت کے امور سے دور کر دیا، اور تو اور عرب کے چند غیر مشہور لوگوں کو حکومت کے امور کے لیے منتخب کر دیا تاکہ حکومت کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ سے نہ نکلے۔